Welcome to our channel Maths is Thinking Itself. In this video we learn about what is meant by percentage. With the help of example we understand the meaning of the percentage word, how to use in the examples also, and then after we take 4 examples how to convert percentage into the fraction as well as in decimals. Now look at the percentage is a fraction whose denominator is always 100. X percent is represented by X percent. It is a percentage symbol. अगर 10% लिखा है that means 10/100. Now look at मार्बल का बॉक्स है, इसमें 200 मार्बल्स है. नाउ इसकी प्राइस है, इस मार्बल बॉक्स की प्राइस है 50 रुपीज. कितनी रुपीज है? 50 रुपीज. नाउ द टू फ्रेंड्स सोनू एंड मोनू decide to buy this marble box. Now the Sonu have 20 rupees in his pocket and Monu have 30 rupees. Now they decide to buy and share the marbles as proportional to their money. So now look at, तो सोनू कितने परसेंटेज मनी दे रहा है मार्बल बाय करने के लिए टोटल के कंपैरिजन में, तो उतने ही उसे मार्बल्स मिलेंगे. तो उसने कितने दिए हैं? आउट ऑफ 50 में से 20. तो उसने कितने परसेंट मनी इन्वेस्ट किया है इस पे? तो 20/50. सो तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है? 100. तो वी वांट टू मेक इट्स डिनोमिनेटर 100. सो हाउ इट पॉसिबल? सो मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर and denominator make 100. So 50 into 2, so it becomes 40/100. So it becomes 40%. So 40% money Sonu invested to buy the marble box. And similarly 30/50, you can convert 30 into 2, 50 into 2, and this is equal to 60/100, which is equal to 60%. तो सोनू ने 40% पैसे दिए, मोनू ने 60% पैसे दिए मार्बल बॉक्स देने के लिए. तो सोनू को कितने मार्बल्स मिलेंगे? 40% टोटल में से. तो टोटल कितनी है? 200. तो उसे कितने मिलेंगे? 40%. तो 40% मीन्स 40/100. सो यू कैन सॉल्व इट 40/100 and you get your answer. Sonu get 80 marbles and Monu get 60%. So after solving it you get answer 120. तो एज प्रोपोर्शन, इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज पुट द योर डिफिकल्टीज इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है या पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. नाउ लुक एट, तो ये है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट. अगर डिनोमिनेटर 100 तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 40%. तो 40% मीन्स 100 में से उसके पास 40 है, तो उसे कितना पार्ट मिल रहा है? हर 100 को उसे 40 मार्बल्स मिल रहे थे, तो 200 के लिए उसे 80 मार्बल्स मिले. अगर 700 मार्बल्स होती तो उसे कितने मिलते? अगर 40% मार्बल्स मिलते होते उसे 700 आउट ऑफ 40%, तो उसे 40 into 7 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? 40 into 2 टाइम्स, क्योंकि 100 को उसको 40 मिल रहे हैं, तो 700 को कितने मिलेंगे? 40 times 7. तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज इन द व्हेन वी सॉल्व द एग्जांपल. Now we understand it more clearly with the more example in next video. If any doubt, so please put your doubts in the comment box so we can take in the next video. To express x% as a fractions, that means we know that x% is equal to x/100, thus 20% is equal to 20/100, means 20 parts out of 100. तो 100 पार्ट्स है तो उसके होंगे तो उसे 20 मिलेंगे. नाउ लुक एट, आफ्टर सॉल्विंग इट you get simplified form of the fraction and that is 1/5. that means अगर 5 पार्ट है तो उसे 1 पार्ट मिलेगा. 20% means. Now
how to convert percentage to the fraction or decimal. Now look at first example. 10% is equal to 10 upon 100. 10 divided by 10 upon 100 divided by 10 which is equal to 1 upon 10. तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10, इसलिए हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से डिवाइड कर रहे हैं. तो एचसीएफ किसका है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 10% is equal to 10 upon 100. So here there are 2 zeros, decimal point shifted 2 place left. So that is equal to 0.1. Second example, 25% is equal to 25 upon 100. तो 25 और 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 25. So we divide numerator and denominator by 25. After solving it, you get 1 upon 4. You can also solve in different way like this. अगर किसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकालते आता है और डिवीजन से सॉल्व करते जाएगा तो भी आंसर सेम मिलेगा. लुक एट, यू गेट 5 upon 20. Now divide 5 by 5 and 20 by 5 and you get same answer. So both the methods are correct. Now second, 25% means 25 upon 100. यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 zeros है डिनोमिनेटर में, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.25. थर्ड एग्जांपल, 50% इज इक्वल 50 upon 100. So 50 and 100 HCF is 50. So divide numerator and denominator by 50 and you get 1 upon 2. The 50% is equal to 50 upon 100. So shifted to this decimal point, 2 places left, so you get 0.5. Similarly 125% is equal to 125 upon 100. HCF 125 over 100 का है 25, so divide it by 25 and you get 5 upon 4. Fourth, 125% is equal to 125 upon 100. डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होगा क्योंकि 2 zeros है 100 पे, सो दैट इज इक्वल टू 1.25. थैंक यू स्टूडेंट्स. इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. और कुछ सजेशन है आपके, प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.